بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے بھائی، آج ہم جو ہے عربی کے معلم کی جو یہ مشق ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لیسن مکمل ہو گیا ہمارا، تو پہلی مشق ہے، یہ ایکسرسائز ہے، اس کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں۔ چلے بھائی، اب کاشف ذرا آپ پڑھیے، شاباش۔ البیت، البیت مانا گھر، آگے ایک، بس گھر، ایک ہی گھر ہے، ہاں بس گھر بولیں۔ آگے الثمر، الثمر، کیا مطلب ہو گیا؟ پھل، پھل۔ آگے چلتے جائیں، الصلاۃ والزکاۃ، کیا مطلب ہو گیا؟ نماز اور زکات۔ اور زکات۔ یہ ہم نے پہلے اتفاق کیا ہوا ہے کہ جس پر ال ہو نا، اس کی عربی ڈائریکٹ بول دیں، جیسے البیت ہے تو گھر بول دیں، الثمر ہے تو پھل بول دیں، اور اگر ال نہ ہے تو ترجمے میں کیا پڑھائیں گے؟ کوئی ایک یا کچھ کا لفظ پڑھائیں گے۔ اچھا بھائی، ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں آن لائن، جی آپ پڑھیے، پوائنٹ نمبر 4 سے پڑھیں، آپ عربی پڑھیں اور ترجمہ کریں، شاباش جی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ پڑھیے۔ خبز و لبن، ہاں، کیا مطلب ہو گیا؟ وہ کچھ دودھ، وہ کچھ روٹی، اور وہ ایک روٹی اور کچھ دودھ۔ وہ ایک نہیں، دیکھیں، خبز و لبن، خبز و لبن، آپ نے کہنا ہے کوئی ایک روٹی اور کچھ دودھ، کوئی ایک روٹی اور کچھ دودھ، اور دوسرے والے لفظ پر وقف کر لیں، خبز و لبن، خبز و لبن۔ پوائنٹ نمبر 5 بھی پڑھ لیں آپ ہی۔ صالح او فاسق، نیک اور بدکار۔ نیک اور تو نہیں ہے، او کا معنی اور کہاں ہے؟ یا اچھا، یا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی تو بتایا تھا آپ کو، کیا تھا نا کہ ال نہ ہو تو پھر کیا ترجمہ بڑھا دیتے ہیں؟ جی، ایک نہیں، کوئی نیک یا بدکار۔ ہاں، کوئی ایک نیک یا کوئی ایک بدکار۔ اچھا، اب پوائنٹ نمبر 6 بھی آپ پڑھ لیں۔ الحسن القبیح، خوبصورت یا بدصورت۔ ہاں، الحسن او القبیح، خوبصورت یا بدصورت، یا پھر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اس کا ایک اور ترجمہ، اچھا یا برا۔ کیا؟ ہاں، قبیح کا معنی برا بھی ہے، بدصورت بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 کاشف آپ پڑھ لیں یہاں سے۔ الماء والخبز، ہاں، ترجمہ کریں۔ پانی اور روٹی۔ پانی اور روٹی۔ اگلا التمر واللبن، التمر واللبن، التمر واللبن، 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 التمر واللبن بولیں۔ التمر واللبن، بیٹا جلدی سے کتاب کھول لو، پھر میں اب آپ لوگوں سے پوچھوں گا جی۔ کھجور اور دودھ۔ دودھ۔ آگے چلتے جائیں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو آج کل جیسے جدید عربی ہے، اس کے اندر ویسے تو قدیم عربی میں لبن اس کو کہتے ہی ہیں، لیکن دودھ کے لیے آج کل یہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ حلیب۔ حلیب کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ایک منٹ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ حلیب، یہ ہو گیا دودھ، اور لبن دہی کے لیے بھی بول دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کون سا پڑھا؟ اب تمبو واللبن پڑھا، ایک اور پڑھ لیں آپ۔ جاہل وعالم، کیا ترجمہ ہوگا؟ جاہل اور نہیں، دیکھیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں وہ بات جو میں نے ابھی سمجھائی کہ ال نہ ہو تو ترجمہ تھوڑا سا ایڈ کر کے پڑھیں تاکہ پتہ لگے یہ نکرہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہاں، کوئی ایک جاہل اور کوئی ایک عالم۔ کوئی ایک عالم، کوئی ایک جاہل اور کوئی ایک عالم۔ بیٹا اگلا احمد آپ پڑھیں، پوائنٹ نمبر 10 بلند آواز سے۔ الانسان والفرس، الانسان والفرس، والفرس، شاباش، ترجمہ کریں۔ ہاں، کوئی ایک انسان کیوں، کیا یہ نکرہ ہے؟ ال لگا ہوا تو ہے، ہاں، اور گھوڑا۔ انسان اور گھوڑا پر ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ اب اگلا پڑھیں۔ درسن و کتاب، درسن لکھا ہوا ہے، دیکھ کے بھی غلط۔ درسن و کتاب، و کتاب، بس دوسرے پہ وقف کر لیں، درسن و کتاب، کوئی درس، درسن و کتاب بولیں۔ درسن و کتاب، درا نہیں بولیں نا، را ساکن ہے بیٹا۔ درسن و کتاب، ہاں، کوئی درس اور کوئی درس، سبق، سبق، کوئی ایک سبق، کوئی ایک سبق، یا کوئی ایک کتاب۔ یا لکھا ہوا ہے، وا کا معنی یا تو نہیں ہوتا بیٹا، اور یہ بھی سوچ کے بولنا ہے کب یا بولنا ہے کب اور بولنا ہے۔ او کا معنی یا ہے، وا کا معنی اور ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دوبارہ کریں۔ کوئی سبق، کوئی ایک سبق، کوئی ایک سبق اور کتاب، اور کوئی ایک کتاب۔ کوئی ایک کتاب۔ اس طرح سوچ کر بالکل توجہ سے کرنا ہے ترجمہ۔ سبحان، آپ پڑھیں اگلا، شاباش بیٹا۔ العادل، ہاں، او الظالم، العادل او الظالم، او عادل او الظالم، العادل، 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 العادل
अविज़ ज़ालिम, अविल ज़ालिम, अविज़ अविल ज़ालिम, गफ कर। ज़ालिम। तर्जुमा कोई नेक, अच्छा, कोई का तर्जुमा पड़ेगा या अल्लाह का है? हाँ, नेक और ज़ालिम, औ का माना और होता है, या वही गलतियां हैं। तवज्जो से सुनना है, शाबाश। अब आपने कहा ना या, आप तर्जुमा करें तो आदिल का तर्जुमा करें। नेक या नेक का लिखा हुआ है, आदिल का माना नेक थोड़ी है। यहाँ क्या हमने जो तर्जुमा भी पढ़ा है, तो इंसाफ आदिल करने वाला। इंसाफ करने वाला, आगे इंसाफ करने वाला, और या जालिम, या जुल्म करने वाला। या जुल्म करने। चलो, पॉइंट नंबर 13 जो है ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो पढ़ लें आप। जमलुन व फरस। हाँ, तर्जुमा करें। सर जमलुन क्या होगा? ऊंट है, ऊंट। तो हम कैसे बोलेंगे? ऊंट। कोई एक, हाँ, ऊंट और घोड़ा। कोई एक ऊंट और कोई एक घोड़ा। जानबूझ के बार बार मैं तर्जुमे में प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि नकीरा में कोई एक का तर्जुमा होता है। सर जमलुन में तो कोई एक नहीं आएगा ना? आएगा ना, जमल में क्यों नहीं आएगा? कोई एक ऊंट, क्योंकि अल नहीं लगा हुआ, जमल के अंदर अल कहाँ लगा हुआ है? अल जमल थोड़ी है। जी जी जी, सॉरी जी सर। चले, कोई एक ऊंट हाँ, और कोई एक घोड़ा। कोई एक घोड़ा या एक घोड़ा। अच्छा, आप देखें, अब आगे उर्दू से अरबी बनानी है। काशिफ भाई पढ़ें आप जरा, पॉइंट नंबर 1। कोई एक घोड़ा, हाँ, अरबी पढ़ें। फरसुन, फरसुन, आगे चलते जाएं। कोई एक आदमी, हाँ, क्या मतलब हुआ? रजुलुन, रजुलुन। अहमद, तीसरा पॉइंट पढ़ें। एक मर्द और एक घोड़ा, अरबी बनाए। रजुलुन व फरसुन, शाबाश। सबान, कुछ रोटी और कुछ पानी, हम्म, खुब्जुन व लबनुन, व लबनुन, व लबन, व लबन, लबन, सही। लेकिन पहले रोटी और पानी है ना, तो पानी को लबन बोलेंगे, माँ, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? खुब्जुन व मा। खुब्जुन, आगे चलते जाएं। एक आदमी और एक फल और एक घर, हाँ, तर्जमा। रजुलुन व अमरुन, और बिंतुन, बिल्कुल, तो बेटी को बोलते हैं बेटा, लड़की को। और एक घर, बैतुन व बैत। व तो बैतुन, यहाँ पर सब के अंदर लगाए बगैर बोले रजुलुन व समरुन व बैत। क्या हो गया बेटा? बोले रजुलुन व समरुन व बैत। हो गया ना? अब पॉइंट नंबर 6 पर नमाज और आलिम। अब देखें, डायरेक्ट नमाज और आलिम लिखा है। एक मिनट रुक जाए, ऑनलाइन जो स्टूडेंट हमारे साथ, आप बताइए इसकी अरबी। नमाज और आलिम, सर इसका होगा अस्सलातु वल आलिम। ये हुई ना बात, है ना? अस्सलातु वल आलिम, ठीक है ना? और वक्त कर देंगे तो वल आलिम हो जाएगा। सही कहा आपने। काशिफ भाई आप पढ़ दें जरा, पॉइंट नंबर 7 है या बद, नेक या बद। अब यहाँ पर डायरेक्ट नेक या बद लिखा है, अरबी बनानी है। और देखें ब्रैकेट में लिखा अच्छा या बुरा, ये भी है। तो अब आप बना दें, पहले नेक और बद की बना लें डायरेक्ट, वही बात। हाँ हाँ, जोर से बोले। अस्सालिहु, अस्सालिहू। अब या के लिए क्या आता है? अस्सालिहु औ अल कबीर। बद, बद का मतलब है बुरा, गुनाहगार। अस्सालिहू, औ के बाद क्या है? औ फासिकू या अविल फासिकू। औ अल नहीं पढ़ना है ना, हमजा वसल है ना, तो जो साकिन है उसको देर दे देंगे। अविल फासिक, अविल फासिक। दोबारा बोले, अस्सालिहु अविल फासिक। बोले, सब बोलने। अविल फासिक, इस तरह नेक या बद। चले, इसको यूं भी कह सकते थे अल हसनु अविल कबीह। क्या? ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, अच्छा या बुरा, अल हसनु अविल कबीह। पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें। अहमद आप पढ़िए। आदमी या घोड़ा, अर्रजुलु अविल फरसु। शाबाश, बोलने सब बोलने। अर्रजुलु अविल फरसु। आप देखा, अब आप लोग पढ़ने लगे ना। पॉइंट नंबर 9 पर ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे साथ हैं वो पढ़ लें जी। दूध और रोटी, अल हलीबु वल खुब्स। देखें भाई, क्या अरबी होगी आप लोग भी बता दें। खुब्जुन व लबनुन, पहले क्या लिखा हुआ है? दूध, तो लबनुन होगा। लबनुन होगा नहीं, हलीब। है। काशिफ क्या होगी अरबी? दूध के लिए मैंने क्या कहा, अभी आजकल क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं?
हलीब हलीब कहते हैं ना, तो अब इसकी अरबी बनाए जरा, दूध और रोटी की क्या अरबी बननी चाहिए? अल हलीबू अल हलीबू, आगे अविल खुब्ज औ तो गलत बोल रहे हैं, या तो और लिखा हुआ आपको वाव लगा है। वाह और वाह होगा या वल होगा, ये भी सब सोच के बोलना है ना, क्या होगा? हाँ तो पूरा बोले, दोबारा बोले सही से। अल हलीबू वल खुब्ज हाँ अल हलीब वल खुब्स बोले, अल हलीब वल खुब्स, सही है ना, सही में आ रहा है ना सर एक एक करके। तो अगला पढ़े 10। एक इंसान और एक घोड़ा। हाँ कोई अब ये एक लगा के इन्होंने बता दिया, अल नहीं लगाना है। रजुलु व फरसु, यानी जब अल नहीं लगा रहे तो आप एक पेश क्यों दे रहे हो भाई? रजुलन हाँ व फरसुन, देखिए रजुलुन तो मर्द के लिए ना, तो आप बोले इंसानुन व फरसुन, इंसानुन व फरसुन, इंसानुन व फरसुन। ये 10 हो गया पॉइंट नंबर। अब हम 11 पर आते हैं। 11 जो ऑनलाइन हमारे साथ स्टूडेंट है वो पढ़ लें। बदसूरत और खूबसूरत। बदसूरत का होगा सही, नहीं नॉट सही, अल्फाज माना में हमने पढ़ा था ना पीछे। जी जी, तो खूबसूरत का तो आता है बदसूरत, खूबसूरत चले जमील कोई और बात हसनन नहीं। और हाँ चले आप बताएं काशिफ कैसे पढ़ेंगे, तो बदसूरत और खूबसूरत कैसे बोलेंगे? पीछे देख देख के चल रहे हैं, मैंने आपको समझाया था ना आप लोगों को कि ये सारे अल्फाज माना याद करने हैं और उसके बाद आप हल करेंगे तो आपको असल फायदा होगा। चले क्या है, हाँ बोल ले, कोई बात नहीं। अच्छा वाह भाई वाह, ले भाई अल कबीहू, एक पेज दे आगे। हाँ हाँ आगे, वाह क्या, हाँ अल कबीहू वल, देखें आपने कहा हसन, और इसको यूं भी तो कह सकते हैं वल जमील, जमील भी खूबसूरत को कहते हैं ना। लेकिन आपने कभी से एक पेज क्यों हटा दिया? इसे हटा दिया कि अल लग गया। हमें पढ़ा तो था कि जब अल आता है शुरू में, हाँ वहां पे भी अल आ रहा है, जहां पे भी अल आएगा वहां तनवीन नहीं आएगी। तो आप बोल रहे अल कबीह वल हसन, या फिर यूं कहेंगे अल कबीह वल जमील, बोले 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 वल जमील, इस तरह है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कायदा, कोई ऐसी नई बात नहीं है। चल अब जो है मैं चाहूंगा आपसे कि जो हमारे साथ ऑनलाइन तालिबा हैं वो पॉइंट नंबर 12 को पढ़ें और उसकी अरबी बनाने की कोशिश करें। चल बिल्ला को क्या था सर वर्ड? एक बिल्ला और एक लड़का। हाँ एक बिल्ला और एक लड़का, क्या था, कुछ लफ्ज याद आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? हाँ 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 हाँ, तो अल जब अल नहीं लगेगा, जब ये आर लिखा हुआ है तो, एक लिखा हुआ है तो नहीं सर, अल नहीं लगेगा, बस एक बिल्ला और एक लड़का है तो उसमें अल नहीं लगेगा। हाँ तो क्या होगा? हिर्रा व अब हिर्रा क्यों कह दी? लड़के को बत्तीस, आप हिर्रा को रे को जबर क्यों पढ़े? हिर्रुन व वलद, हिर्रुन व वलदुन, बिल्ला और लड़का, ठीक है ना। दोबारा बोले हिर्रुन व वलद, बोलिए हिर्रुन व वलद। हाँ बेटा यहाँ तवज्जो रखनी है, हिर्रुन व वलद, बिल्ला और लड़का, तो एक बिल्ला एक लड़का। चले अगला आप पढ़े अहमद 13, पॉइंट नंबर 13। चांद और सूरज। हाँ अश-शम्सु वल कमर। अश-शम्स, अश-शम्सु किसकी अरबी? आप उल्टे क्यों चल रहे हो? तो भाई चांद को शम्स बोलते हैं, जो लिखा है सीधी सीधी अरबी बनानी है ना, अभी तो आप स्टार्टिंग में हो भाई। हाँ कमरुन, कमरुन, अल कमरु हाँ वश-शम्सु, ये हुई ना बात। सब बोल लें दोबारा, अल कमरु वश-शम्सु, बोले दोबारा। चल अब सोबान पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 14, ऊंट या घोड़ा। अल जमलु व, फिर सोबान वहां पे आ जाता है या बेटा। हाँ भाई, या अरबी में या क्या, हाँ तो आप पढ़े ना मिलाकर, अहमद बोलना नहीं है, बताना। अल जमलु औ फरसुन, आओ फरसुन हो गया, उनको कोशिश करने दें। घोड़े को फरस ही बोलते हैं बेटा, लेकिन जरा आप सोच के बताएं ना कि अल आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, सोच के। हाँ तो मिला के पढ़े आप, अल फरसु, शुरू से पढ़े, ऊंट या घोड़े पूरे की अरबी पढ़े। अल जमलु औ फरसुन, अल, देख रहे कैसे अटक रहे हैं, ऐसे नहीं बनाई इन्होंने बस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चले सही कौन बताएगा? अहमद आप बता दें। अल जमलु अविल फरस, अल जमलु अविल फरस, तो अविल पढ़ना था।
जब अल आ रहा है और पीछे साकिन है तो जेर दे दो ना, वाव को जेर देके लाम में मिला दो। अविल फरस पढ़ा था ना, हमदा मसल गिर जाता बीच में। चलिए देखें, बस यहाँ पर मैं आपको अभी रोकूंगा, इसके बाद देखें आगे है सवाल जवाब। इसी तरह इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये पहले से करके ले आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप सही जवाब देंगे, आपको फायदा भी होगा। ग्रामर की रिपीटेशन हो जाएगी, पूरे सबक लेसन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज हमने मशक कर ली, इसी पे मैं रोक रहा हूँ।